Hello everyone. In this video we are going to discuss about the concept of human development. But before we'll talk about human development, we would like to talk about what was before human development. Okay, so before human development, a country's level of development used to be measured by GDP of that country, and GDP is like the income of a country. Okay, GDP is the monetary value of all the goods and services produced in a country in a year. So GDP refers to gross domestic product, and it's like income of a country. So if the country's economy is bigger, it will have higher GDP, and that country would be considered as more developed country. And if on the other hand, the economy, the size of the economy of a country is smaller, it will have lower GDP, and that country would be considered as less developed country. So let's talk about now the human development. So students, as the name suggests, human development, it means that it is talking about the development of human being. Okay, and GDP was like about increasing the wealth of a nation, है ना. GDP कितने डॉलर बढ़ गया, कितने रुपीस बढ़ गया, है ना. So GDP focuses on the increasing of wealth of a nation in terms of money, currency, ठीक है. On the other hand, human development talks about the development of human being. Okay, it was first introduced in first human development report. It was propounded by this person, Mahbub-ul Haq, and in order to measure the human development, he also created a human development index in 1990. Later on, this person, Amartya Sen, who is an Indian economist and also a Nobel Prize winner in economics, he also worked together with this Mahbub-ul Haq and refined this concept of human development over years. Okay, so the Mahbub-ul Haq defined human development as the development, means the development which, किस तरह का development, तो development which enlarges the people's choices and improves their life. Okay, so these are the key words: improves, people's choices and enlarges. ठीक है, ये तीन keywords हैं यहाँ पर. तो enlarges people's choices, people के पास जो choices हैं उसको बड़ा करना, ठीक है, choices को बढ़ाना, लोगों के पास जो choices हैं उसको expand करना, ये जो है human development है. और दूसरी बात कि लोगों के life को improve करना, है ना, improves their lives. तो जो लोगों की, people के life को improve करे, ठीक है, वही डेवलपमेंट क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा. अब बात करेंगे बच्चों आगे के स्लाइड्स में कि यहाँ पे पीपल्स चॉइस का क्या मतलब है. ठीक है, तो चॉइस का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये बच्चों हम निकाल सकते हैं कि जैसे कि चॉइसेस, ये शब्द तो आपने सुना होगा. ठीक है, चॉइस, ठीक है, एक और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक सिंपल से वर्ड से, टर्म से. ठीक है, MCQs, ठीक है, ये आपने सुना होगा, है ना, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इसमें क्या होता है बच्चों, आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना, A, B, जनरली क्या होता है कि 4 ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, A, B, C, D. और इसमें से क्या होता है कि कोई एक आंसर, कोई एक ऑप्शन जो है वो सही होता है और उसको चूज करना पड़ता है, है ना, कि कौन सा आंसर सही है. तो यहाँ पे देखिए चॉइस का यहाँ पे क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस, कि आपके पास उस क्वेश्चन में ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, एंड यू विल हैव टू चूज वन करेक्ट ऑप्शन. इन द सेम वे इन लाइफ, ठीक है, पीपल के पास ऑप्शंस होने चाहिए कि वो किस तरह का लाइफ जीना चाहता है. ठीक है, तो यहाँ पे पीपल्स चॉइस का मतलब वही है बच्चों कि लोगों को रियल लाइफ में कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए. ठीक है, तो चॉइस का हम यहाँ पे सिंपल सा, अगर बहुत ही बेसिक मीनिंग निकालना चाहें तो वो है ऑप्शन, कि लोगों के पास कितने ऑप्शंस हैं लाइफ जीने के, किस किस तरह के लाइफ वो जी सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस इसको ऑप्शन से रिलेट करके रखना है, इसके कॉन्सेप्ट को, चॉइस का मतलब. और नेक्स्ट स्लाइड पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे ये आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे पीपल्स चॉइस की बात क्यों की जा रही है इस डेफिनेशन में. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि चॉइसेस अवेलेबल टू एन अनएजुकेटेड पर्सन. देखते हैं, ठीक है, जो पर्सन एजुकेटेड नहीं है, उन्होंने कोई कॉलेज एजुकेशन नहीं ली है, कोई स्कूली एजुकेशन नहीं ली है, एंड ही और शी डज नॉट हैव एनी स्किल, तो व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे कैन डू. They can work as a construction laborer, they can work as
an agricultural worker, they can work as vegetable seller, and they can work as security guard. Okay, this activities does not require that kind of educational degrees and skills. Okay, so uneducated person can do this work. Now let's see the choices available to an educated person. Okay, the educated person can become a doctor, engineer, professor, scientist, and these are the just few examples that I'm giving you. I cannot include all the examples here, but you can think other examples also. Okay, you can think about many examples that is available. Okay, but now look at here, educated person have these options. Can uneducated person become a doctor? No. Can uneducated person become an engineer? No. Can uneducated person become a professor in a university? No. Can an uneducated person become scientist? No. It means that all these options are unavailable to an uneducated person. It means that an educated person have more options in life in comparison to an uneducated person. Now let's see some more examples. Now the choices available to a rich person. So एक rich person है जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है. Okay, he or she has more than enough money. तो वो देखिए क्या क्या कर सकते हैं. They have option to travel to a foreign nation. It could be anything, Italy, Switzerland, okay, Brazil, Thailand, any country of his interest, his or her interest. Now they can also buy a BMW car, okay, luxurious car, and they can live in such kind of, you know, lavish bungalow, and they can also become scientist. They can go to foreign universities for education, okay, which are good universities. But in order to get educated in foreign universities, it needs a lot of money. Okay, you'll have to live there. So rich person can do all these things. Now let's see choices available to a poor person. Okay, so poor person does not have home. Okay, look at, they are sleeping on the street, they are begging, and they have cycle instead of BMW car, and daily wage worker, they can work as daily wage worker. So look at here, all these options, travel to foreign nation, you know, owning a BMW car, living in bungalow, and becoming a scientist are unavailable to a poor person. Okay, so this is what the choices refers to. Okay, तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बात कर रहा है, इन्होंने जो बोला एनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस, तो इसी चॉइस को क्या करना है, इंक्रीज करना है हमें. ठीक है, और वही ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, मतलब कि वो चॉइसेस ये पुअर पर्सन के पास भी अवेलेबल हों. ठीक है, हम ऐसा डेवलपमेंट करें कि पुअर पर्सन, ये जो जिसके पास होम नहीं है, स्ट्रीट पे सो रहा है ये, ठीक है, एंड अ पर्सन इज बेगिंग, इनको बेगिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़े, इनको स्ट्रीट पे सोने की ज़रूरत नहीं पड़े. ठीक है, और इनके पास भी ऑप्शंस हों कि दे कैन चूज मोर बेटर लाइफ. ठीक है, ये जो लाइफ ये जी रहे हैं, इससे बेटर लाइफ को वो चूज कर पाएँ, और यही ह्यूमन डेवलपमेंट बात करता है. ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि इन चॉइसेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हाउ टू एनलार्ज पीपल्स चॉइसेस. ठीक है, तो चॉइसेस को बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए. सो द चॉइसेस रिक्वायर्स कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम, और कैपेबिलिटी ही लीड करती है आपको फ्रीडम की तरफ. ठीक है, और फ्रीडम मिलता है तो वो आपकी कैपेबिलिटी को भी इनहांस करती है, नो डाउट, बोथ इंटर रिलेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कैपेबिलिटीज क्या है. सो द कैपेबिलिटीज आर अ पर्सन्स रियल फ्रीडम्स और अपॉर्चुनिटीज टू अचीव फंक्शनिंग. ये थोड़ा सा टेक्निकल है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है कैपेबिलिटी और फ्रीडम का, ये अमर्त्य सेन से आता है ह्यूमन डेवलपमेंट में. ठीक है, ये अमर्त्य सेन ने के वर्क से आता है. ठीक है, तो हो सकता है ये पहला सेंटेंस आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आए. ठीक है, ये सेकंड पढ़ते हैं. ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इससे आपको समझ में आ जाएगा. वाइल ट्रैवलिंग इज अ फंक्शनिंग, ठीक है, कि ट्रैवल करना इज अ फंक्शनिंग, बट रियल अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल इज द कॉरेस्पॉन्डिंग कैपेबिलिटी. अब देखिए वही बात आ रही है. सपोज करिए कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, दे डिजायर टू गो टू फॉरेन डेस्टिनेशंस. ठीक है, सपोज कि स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं घूमने के लिए, बट बस सोचने से तो नहीं होता ना,
वो जा तो नहीं पाते हैं, उसके जाने के लिए क्या चाहिए, दे नीड मनी, ठीक है, क्योंकि फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, देन यू विल हैव टू बुक द होटल्स देयर, देन यू विल हैव टू स्पेंड फॉर फूड, देन यू विल हैव टू स्पेंड फॉर द लोकल कन्वीनियंस वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे भी आप घूमने जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, जो ट्रैवलिंग चार्जेस हैं वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, उसके लिए चाहिए मनी, ठीक है। तो मनी सबके पास तो है नहीं, बस सोच सकते हैं ट्रैवल के बारे में, लेकिन रियल में वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो रियल में ट्रैवल नहीं कर पाना ही जो है ना, वो क्या है, कैपेबिलिटी की कमी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इनफ मनी है तो हम ये कहेंगे कि उनके पास जो है वो कैपेबिलिटी है वहाँ पे जाने की, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैवल इज अ फंक्शनिंग बट रियल अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल इज द कैपेबिलिटी। अगर हम वहाँ पे रियल कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं है उतना पैसा, तो हम ये बोलेंगे कि हमारी कैपेबिलिटी जो है वो क्या है, कम है। वैसे ही अगर हम बात करें कि कोई अनएजुकेटेड पर्सन ये सोचे कि मुझे टीचर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है या कुछ और भी बनना है, जो भी हो, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, वो अपने आप को एक भूल भुलैया में रखने वाली बात है ना। उनके पास वो अब कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की नहीं या वो पढ़ नहीं पाए, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है, तो उनकी कैपेबिलिटी कम हो गई। वहीं पर जो एक एजुकेटेड पर्सन है, दे कैन चूज़, ठीक है, कि मुझे क्या बनना है, क्योंकि उनके पास डिग्रीज हैं, ठीक है, तो वो चूज़ कर सकते हैं। हमने अभी पिछले स्लाइड पे देखा था ना कि एजुकेटेड पर्सन के पास जो है कई ऑप्शंस हैं, बट अनएजुकेटेड पर्सन के पास वो सारे नहीं हैं, ठीक है। तो इसी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहिए हमें, ताकि उससे क्या होगा कि लोगों के पास जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अमर्त्य सेन ने इसी से ये डिफाइन किया है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, कि डेवलपमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव हो क्या, इंक्रीज इन फ्रीडम्स। और फ्रीडम यहाँ क्या है, फ्रीडम का मतलब यहाँ पे यही है कि आप पॉवर्टी से निकल जाएं, आप स्ट्रीट पे ना सोएं, आप भूखमरी के शिकार ना हो, आप जो करियर चूज करना चाहते हैं वो आप चूज कर पाएँ, आपके पास अच्छा एजुकेशन मिल पाए आपको, ठीक है, आप आगे बेटर अपने लाइफ को जो है वो बेटर कर सकें, आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको बढ़ा सकें। यही सारी चीज़ें जो है वो फ्रीडम है, ठीक है। और इसके बारे में हम जो इंडिया पीपल एंड इकॉनमी में है ह्यूमन डेवलपमेंट वाला चैप्टर, उसमें इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ये डेवलपमेंट एज फ्रीडम के कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट के बारे में। और जो डेफिनेशन में जो कुछ टर्म्स थे जैसे कि चॉइसेस, पीपल्स चॉइसेस, है ना, इनके बारे में बात हो गई, ठीक है, उनके एक्सप्लेनेशन के बारे में। अब देख लेते हैं कि इससे निकल के क्या आता है। तो ह्यूमन को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम डेवलप करें, ठीक है। When human development talks about improving people's life, तो कैसे improve करें, कौन कौन से वो मेजर एस्पेक्ट हैं जिसको हम improve करें तो people का जो लाइफ है वो ठीक ठाक improve हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो कई चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन सब पे फोकस नहीं किया जा सकता है ना, वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल चीज़ हो जाएगी, अनरियलिस्टिक हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम फोकस कर सकते हैं, ठीक है, वो है हेल्थ। तो ये है की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। हमें इन एरियाज पे, की एरियाज, वैसे कई एरियाज हैं बट ये की एरियाज का मतलब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स। अगर इन तीन चीज़ों पे हम फोकस करें और लोगों को ये तीन चीज़ें मिल जाएं तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ को इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। हेल्थ, आपके पास पैसा हो, कुछ भी हो, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आप जो है बीमार हैं, आप खा ही नहीं सकते। आपके पास जो है अच्छे से अच्छे पकवान रखे हों, ठीक है, स्वादिष्ट, लेकिन आपका जो है हाजमा गड़बड़ है तो आप खा ही नहीं पाएंगे, है ना। आपका जो है मन कचोट कर रह जाएगा, यार मैं खा नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो हेल्थ, तो आपके पास सब कुछ है लेकिन हेल्थ नहीं है तो बच्चों कुछ नहीं है। और ये अभी के समय में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो एक पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक, ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से देखिए कि लोग अच्छे अच्छे कंट्रीज़, है ना, जो कि बहुत ही वेल्दी हैं, स्ट्रांग हैं, सुपर पावर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, उनकी हालत ख़राब हो रखी है, ठीक है। इतना सब कुछ होते हुए भी जो है उनकी हेल्थ सिस्टम जो है ख़राब हो गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप हेल्दी नहीं हैं, कहा भी जाता है ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर हेल्थ नहीं है आपके पास तो फिर उस वेल्थ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
तो हेल्थ, आप हेल्दी हैं तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आप खेल पाएंगे, तभी आप जो भी करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, ठीक है, खा पाएंगे, बाहर घूमने के लिए जा पाएंगे, ठीक है। हेल्थ गड़बड़ हो गई तो आप जो भी करना चाहते हैं ना, वो मीनिंगफुल लाइफ है ना, जो पर्पस है आपका कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हेल्थ जो है वो उसके आगे आ जाएगी, और हेल्थ, आपका जो बैड हेल्थ है वो आपको रोक देगी, ठीक है। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो एजुकेशन। देखिए बच्चों, एजुकेशन जरूरी है। बिना पढ़े लिखे देखिए हम करियर नहीं बना सकते, हम डॉक्टर नहीं बन सकते, हम इंजीनियर नहीं बन सकते, हम प्राइवेट कंपनी में काम नहीं कर सकते, ठीक है, सीईओ नहीं बन सकते, ठीक है। क्योंकि सब जगह क्या चीज़ें हैं, सब जगह कुछ ना कुछ स्किल चाहिए, और वो स्किल आपको कहाँ से मिलती है? वो आपको एजुकेशन से मिलती है, ठीक है। आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, फिर जो है यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, वहाँ पर जाकर आपको क्या है, वो स्किल्स मिलते हैं जिसको कि आप यूज़ करके बाद में काम कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी जो लाइवलीहुड है वो अर्न कर सकते हैं, अच्छी लाइवलीहुड। उसके बाद एक्सेस टू रिसोर्स, देखिए ये दोनों चीज़ें हैं, और लोगों के पास अगर मनी ही ना हो, पैसे ही ना हो, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और ये अभी देखिए पता चल रहा है, जैसे कि अभी देखिए कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अपने घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ के पास पैसा ही नहीं है खाने के लिए, कुछ के पास जो है ट्रेन की टिकट लेने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या बताता है, उनके पास एक्सेस टू रिसोर्स नहीं है, मनी है ही नहीं, है ना, पैसे नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से देखिए कि क्या हो गया, वो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, खाना खरीद नहीं पा रहे हैं। अगर आसपास खाना है भी, मिल भी रहा है, तो वो नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनके पास मनी नहीं है, रिसोर्स नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ह्यूमन की डिग्निटी कम हो जाती है, ह्यूमन की लाइफ, जो पीपल्स की लाइफ है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। और ये आप देख ही रहे होंगे आजकल न्यूज़ में, ठीक है। ये इसका कुछ एग्जाम्पल है रिसेंट न्यूज़ से, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और यही डायमेंशंस हैं, ठीक है, ये अलग अलग टर्म्स हैं, की एरियाज, डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो वही चीज़ें हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम। एक्सेस टू रिसोर्स को हम इनकम भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये इनकम के मामले में ही ये कहा जा रहा है, ठीक है। एक्सेस टू रिसोर्स, किस रिसोर्स? तो इनकम, ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये कभी कभी 1 या 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं, ठीक है, 1 मार्क में भी, की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ओके, डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ये तीनों चीज़ें एक ही होंगी, या की एस्पेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ये सभी चीज़ें लगभग एक हैं। लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ आप कब जी पाएंगे? जब आपकी हेल्थ अच्छी हो, ठीक है। उसके बाद बीइंग एबल टू गेन नॉलेज, तो नॉलेज कहाँ से गेन करेंगे आप? एजुकेशन से, ठीक है। हैविंग एनफ मीन्स टू लिव, मीन्स टू बी एबल टू लिव अ डिसेंट लाइफ, ठीक है। आपके पास ठीक ठाक मनी होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, जिससे कि आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ आप जी पाएँ, ठीक है। तो ये हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो होगा 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके बारे में उसमें डिस्कस करेंगे। कुछ कन्फ्यूजन है इसमें, अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे बताइएगा, फिर जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे उसको फिर से अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की, ठीक है।